Good morning, dear participants on this Sunday morning. Thank you all for joining this webinar on this morning. And probably we'll discuss certain indicators, certain option tools that will help you in intraday trading. Now we have approximately 1,600 members join this webinar. We are still waiting for some more participants to join. ये जो आज का वेबिनार अपना है ये it will be around 1 hour 30 minutes. For next 1 hour we will learn the concepts. Then next 30 minutes we will have some question answer, or again we can extend the question answer session too. But we will try to cover the contents in next 1 hour 15 minutes. And then we will have a question answer session at the last. I'll be starting in next 1-2 minutes, just waiting for more to join. The major topic that we are going to discuss today is options trading. Intraday options trading, how to trade index options in intraday. Index trading in options intraday. Plus, we will also discuss how we can create bull call spread or butterflies or bear spreads like hedging strategies. तो जो फोकस है वो इंट्राडे ट्रेडिंग प्लस कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग पे हम फोकस करेंगे, और डेटा जो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग स्क्रीनशॉट्स या जो भी डेटा आपको फ्लैश कर रहे हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से उसको समझना है, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड दिस लर्निंग एंड अर्निंग सेशन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन. नाउ the agenda of today's webinar and meeting is first we will discuss the telegram highlights and print screen. यानी कि जो भी telegram premium channels पे print screens हम लोग शेयर करते हैं like payoff table या फिर derivative data table या जो भी strategies है उसको कैसे हमें समझना है, because this is very important. कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको वो अंडरस्टैंड करने में या कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन हो रही है, तो वो हम एक डिस्कस करेंगे कि टेलीग्राम हाइलाइट्स जो हैं उसको किस तरीके से हम समझें, जो प्रिंट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करें. देन वी विल मूव टू निफ्टी डेरिवेटिव डेटा. जो इंट्राडे में डेटाज हैं उसकी एक्यूरेसी किस दिन कितनी है, क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से उस डेटा को हमें रीड करना चाहिए. Then we will try to know what is the hit ratio of this model. Like say many of us think कि 10 में से अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 8-9 ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बट नॉर्मली द हिट रेशियो ऑफ दिस मॉडल इज 65 to 70%. यानी आउट ऑफ 10 ट्रेड्स यू विल हैव अ हिट रेशियो ऑफ 6.5 to 7 ट्रेड्स. यानी आपके 6 से 7 ट्रेड सही होंगे और 3 से 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस होंगे. सो देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस वर्क्स देयर. Next, this is a most important point, limitation of the model. यानी कि if this model has a hit ratio of 60-70%, so that's fine. But what are the limitations? किस समय ये मॉडल का हिट रेशियो कम हो जाता है? Like on Friday the hit ratio is low, and we will try to understand why on Friday the hit ratio is low, why on expiry day the hit ratio is low, why on gaps and gaps down the hit ratio also reduces. We will also try to understand the limitation of this model. यानी ये जो मॉडल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके क्या लिमिटेशंस हैं. if you know the limitation, then on those days we can reduce the quantities, or we can avoid the trading on the days where this model has a limited accuracy. So we will understand the limitation of the model. Then we will try to understand how to trade on expiry day. Expiry day में हम किस तरीके से इस मॉडल को यूज करें. This is again a very important topic कि expiry day में हम किस तरीके से कम रिस्क पे प्रॉफिट बना सकते हैं. Then option writing in intraday. Approximately 70% or 80% of retail participants are interested in option buying, but still there are 30%
who likes option writing. So we will discuss how to write options in intraday. Then VWAP, this is the most important for entry and exit levels. So VWAP पे हम समझेंगे what is VWAP, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है, और इंट्राडे VWAP पे हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, और ये इसके यूज से हमें कैसे एंट्री लेवल बेटर हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू स्कैल्पिंग और हाउ वी कैन डू जॉबिंग इन इंट्राडे. सो दिस VWAP विल हेल्प यू. देन स्ट्रेटजी पे ऑफ, जो टेलीग्राम में स्ट्रेटजी पे ऑफ हम फ्लैश करते हैं उसको किस तरीके से समझना है, वो क्या उसमें प्रॉफिट किस लेवल पे कैसे आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. देन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. सो दीज आर द टॉपिक दैट आई हैव टेकन. इट मे टेक अराउंड 1 hour 15 minutes. Then we will have a question answer session for next half an hour or 1 hour. Now moving to the first topic, Telegram highlights and print screen. यानी टेलीग्राम में जो भी स्क्रीनशॉट या हाइलाइट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं उसको कैसे समझना है. देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर मूविंग टू द टेलीग्राम हाइलाइट्स, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल. So this is the most important, because if you know the limitation of any of the product, किसी भी चीज की अगर हमें limitations पता है तो हम उसे ये समझ सकते हैं कि कब हमें यूज करना है, कब हमें ज्यादा यूज करना है, कब हमें एग्रेसिव होना है, कब हमें डिफेंसिव ट्रेड करना है उस मॉडल पे. तो दिस विल हेल्प यू इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग. नॉर्मली व्हेन वी बैक टेस्टेड दिस मॉडल फॉर लास्ट 5 years, यानी जब मंथली ऑप्शंस होती थी और अभी वीकली ऑप्शंस है. वीकली ऑप्शंस लास्ट 2 साल से है, और मंथली ऑप्शंस पे हम लोगों ने जब इसको बैक टेस्ट किया, वी गॉट एवरेज हिट रेशियो ऑफ 65 to 70%. यानी कि आप आउट ऑफ 10 ट्रेड्स यू गेट प्रॉफिट्स इन 6.5 to 7 ट्रेड्स. अगेन वहां पे एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंट्री पे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द एवरेज नॉर्मल हिट रेशियो ऑफ दिस मॉडल. मॉडल क्या है वो हम आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, बट दिस हैज गॉट अ एवरेज हिट रेशियो ऑफ 65 to 70%. देन when the accuracy is low, like on Friday the accuracy level is low, and on expiry day the accuracy level is approximately 55 to 60%. Friday को accuracy level low क्यों होती है, इसका रीजन ये होता है कि जब नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होती है आफ्टर थर्सडे, फ्राइडे द ऑप्शन प्रीमियम्स आर वेरी हाई. यानी जो कॉल्स एंड पुट्स के प्रीमियम होते हैं दे आर वेरी हाई ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे को ऑप्शन राइटर्स आर वेरी एक्टिव इन बोथ कॉल्स एंड पुट. दे राइट कॉल्स ऑल्सो, दे राइट पुट्स ऑल्सो. सो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्राइडे को पोजीशंस बनती है ओपन इंटरेस्ट की, दैट इज सिमिलरली डिफरेंस कम होता है. यानी कि अगर कॉल्स की पोजीशन से 30 lakhs है तो पुट की पोजीशन अप्रोक्सीमेटली 35 lakhs होगी या 38 lakh होगी. यानी कि द डिफरेंस बिटवीन कॉल्स एंड पुट पोजीशंस आर in the range of 7 to 10 lakhs. The difference is not very high. कभी कभी डिफरेंस ऐसा होता है कि इट गोज अप टू 30-40 lakhs. तो उस दिन ट्रेंडिंग डे हो सकता है, बट नॉर्मली ऑन द डे ऑफ फ्राइडे द ऑप्शन राइटर्स आर एक्टिव इन बोथ कॉल्स एंड पुट्स. तो दैट्स वाई फ्राइडे को ये मॉडल की एक्यूरेसी लेवल कम होती है, क्योंकि उस दिन ऑप्शन बायर्स कम होते हैं, ऑप्शन राइटर्स आर मोर इनटू द मार्केट, मोर एक्टिव इनटू द मार्केट. नाउ ऑन द एक्सपायरी डे, अगेन व्हाई द एक्यूरेसी इज लो. एक्सपायरी डे में एक्यूरेसी इसलिए लो होती है कि कई बार बहुत लो प्रीमियम्स के ऑप्शंस मतलब ऐसे ट्रेडर्स राइट कर देते हैं जिन दे आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस. लाइक मेनी ब्रोकिंग हाउस दे गिव टू मच ऑफ लिवरेज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, लाइक 20x, 30x, 40x, एंड दे क्रिएट अ पोजिशंस बेस्ड ऑन लिवरेज. तो बहुत ज्यादा हाई लिवरेज पोजीशंस होती है, तो उस केस में कई बार जो बिगर हैंड्स हैं दे डोंट राइट ऑप्शंस विच आर ऑफ 7 rupees, 10 rupees और 8 rupees. Normally there are many retail players who started writing these kind of premiums, क्योंकि वहां पे लिवरेज ब्रोकिंग हाउस के थ्रू मिलती है. सो दैट्स वाई ऑन एक्सपायरी डे देयर लॉट ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन ऑन राइटिंग ऑफ ऑप्शन. सो वहां पे एक्यूरेसी लेवल थोड़ी रिड्यूस हो जाती है. When the accuracy is very high, the accuracy is very high on Tuesday, Wednesday and Monday. ये 3 दिन में इसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है हाई लेवल पे. एंड द मोस्ट एक्यूरेट डेज आर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. तो जब इस डेटा को आप यूज कर रहे हो तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आपकी पोजीशन साइज ज्यादा हो सकती है, फ्राइडे को पोजीशन साइज कम हो सकती है, एंड थर्सडे को स्टिल आप ट्रेड कर सकते हो, बट हेज पोजीशन आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर है.
Now again, next limitation is when the volatility index is more than 25. Normally you will see that पूरे साल में VIX 70% of the time trades below 25. 70% of the time it trades below 25. अभी currently again we are seeing the VIX is trying to move above 25. यानी अगर VIX की जो band है, that is band is changing. If the band of VIX changes, band की VIX एक VIX band की VIX होती है 15 से 20 की. The second band normally we consider is 20 to 25. Up to 25, this model will work very well. But when the VIX goes above 25 to 35 band, the volatility increases. In that case, the accuracy of this model reduces. तो जब भी VIX index is more than 25 या किसी भी दिन VIX में there is a spike of 20% on the same day, in that case, the accuracy can come down for this model. So again, to note that when the VIX is more than 25, the accuracy goes down. Again, कुछ sudden movement because of some news कि कोई ऐसी न्यूज आ गई कि अचानक से there is some attack or some sudden unsystematic risk, अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पे एक्यूरेसी रिड्यूस होती है. बट अगर बजट है या आरबीआई पॉलिसी है, सम नॉन इवेंट, अगर नॉन इवेंट है तो दिस हैज गॉट अ वेरी गुड एक्यूरेसी. यानी अगर बजट है तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट टाइम बजट आ रहा था, बजट के दिन डेटा वाज पॉजिटिव सिंस ओपनिंग एंड मार्केट रैलीड. Again, on the day of RBI policy also, this model works very well. So non-event में this model will work because bigger hands or insiders, they keep on building positions before the event. But अगर सब कुछ unknown event हो जाए जिसका आइडिया किसी को भी नहीं है, तो उस केस में you have to take the stop loss. Now gap up and gap down opening. जो recent में what we are observing is there is a gaps and gaps down opening of more than 2%. जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग 2% से ज्यादा होंगे, उस समय ये मॉडल की एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली 2% से ज्यादा गैप्स साल में, मंथ में आपको रिसेंटली ज्यादा दिख रहे हैं, बट मंथ में आपको 2 से वीक में 1 या मंथ में 2 से 3 से ज्यादा गैप्स हमें ऐसे नहीं मिलते हैं. आउट ऑफ 56 और 360 200 ट्रेडिंग डेज यू विल फाइंड 10% of the days where you have a gaps more than 2%. So these are the limitations. जहां पे भी gaps 2% से ज्यादा होंगे, वहां पे this model will have a low accuracy. Some unsystematic risk. VIX is more than 25 plus Friday and expiry day, जहां पे accuracy level थोड़ी कम हो सकती है. Now moving to the Telegram highlights and जो उसमें स्क्रीनशॉट्स हम शेयर कर रहे हैं, उसमें हम उसको कैसे समझना है. देन वी विल गो टू द मॉडल. I will start with 5th March. We start the day with some good morning message, like some quotes or some knowledgeable quotes. Then I normally give a small view at 9:35 to 10 between 9:35 to 10. But जो 9:35 से 10 के बीच का जो व्यू होता है, that is a very very initial data, यानी कि स्टार्टिंग डेटा के ऊपर होता है. और स्टार्टिंग डेटा का मतलब हो गया कि ये जो डेटा फॉर्मेशन है, ये जिस बेसिक स्टार्टिंग डेटा फॉर्मेशन जो 10 बजे के आसपास फ्लैश होता है, इसमें आप ये समझने की कोशिश करो डेटा क्या है. ये जो डेटा ऑटो टेंडर में ये पब्लिश हो रहा है, दिस इज अ चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा. ये सब मोस्ट रिलेवेंट इज चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट डेटा. दिस इज अ कॉल साइड एंड ये पुट साइड है. ये कॉल साइड एंड पुट साइड का डेटा है. अब इससे हम मार्केट की सेंटिमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है. यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को भी समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है. 90% of the retail players, they normally buy options because buying of options requires less margin or less capital, whereas selling of option requires more capital, more margin. What I'm assuming is that 90% of the retail players are buyer of options. Either they are creating spreads or they are buying naked options. 10% of the retail public are seller of options. Even not 10%, 5 to 6%. So यहाँ पे हम just, this is an assumption, this is not a fact.
यहाँ पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आप कॉल का देखो, कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज है 18 lakhs एंड पुट्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज है 10 lakh। यहां से हम एक सेंटिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ओपनिंग सेंटिमेंट क्या है। ओपनिंग सेंटिमेंट में ये बता रहा है कि मार्केट फ्राइडे को 10 o'clock पे जब मार्केट खुली तो मार्केट वाज डाउन अराउंड 100 पॉइंट। तो रिटेल पब्लिक का जो सेंटिमेंट था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन कॉल ऑप्शन, सो उन्होंने 18 लाख कॉल खरीदा और 10 लाख पुट खरीदा। सो द डिफरेंस बिटवीन कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड पुट ओपन इंटरेस्ट इज 10 लाख शेयर्स। सो ये 10 o'clock पे ये पब्लिश हो गया 10 बजे की, दोनों का डिफरेंस 10 बजे 9 लाख का है। सो इससे हम सेंटिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल पब्लिक का जो सेंटिमेंट है दैट इज बुलिश सेंटिमेंट, दे आर ट्राइंग टू बाय कॉल ऑप्शंस। आवर स्ट्रेटेजी इज टू ट्रेड अगेंस्ट द रिटेल पब्लिक, यानी कि अगर रिटेल पब्लिक कॉल ऑप्शन खरीद रही है तो हमें पुट में ट्रेड करना है, अगर हम वो पुट में है तो हमें कॉल साइड ट्रेड करना है। ये जो डेटा है ये बैंक निफ्टी का डेटा है। ये देखिए ये डेटा अभी आपको दिख रहा है, दिस इज अ बैंक निफ्टी डेटा। और 10 बजे नेगेटिव डेटा दिखने के बाद बैंक निफ्टी वेंट डाउन बाय 400-500 पॉइंट ऑन द सेम डे इन द क्लोजिंग सेशन एंड thereafter it recovered at the last, but anyway it went down by 400-500 पॉइंट। सो ये एक हाईलाइट्स है जो हम आपको प्रिंट स्क्रीन देते हैं। इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज ऐसे करना है कि ये डेटा का डिफरेंस पे हमें फोकस करना है कि डिफरेंस का लेवल क्या है। अगर डिफरेंस का लेवल बहुत ज्यादा है देन देयर इज अ क्लियर डाउनसाइड, और डिफरेंस का वैल्यू इज लेस, तो इन दैट केस वी हैव टू वेट एंड वॉच। नाउ सेकेंड स्क्रीनशॉट, दिस इज अ स्ट्रेटजी स्क्रीनशॉट। स्ट्रेटजी का मतलब हमें क्या लाइक बाय और सेल, ये स्ट्रेटजी जो हम क्रिएट करते हैं दिस इज सेकेंड वीक का मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। टाइप यानी पुट एंड कॉल, if it is P यानी put, this is C यानी call, this is the quantity, strike, premium, net premium यानी कि 75 into the premium, this if you multiply this so you get a net premium. So this is the cost per lot, यानी कि 214 में आपने खरीदा और 140 में बेचा, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेटजी आ रही है। सो ये एक स्क्रीनशॉट हम शेयर करते हैं स्ट्रेटजी जब हम क्रिएट करते हैं। देन दिस इज अ पे ऑफ, यानी कि जो स्ट्रेटजी आपने क्रिएट किया वो एक्सपायरी डे में, यानी एक्सपायरी डे को 3:30 पे, अगर एक्सपायरी 14,900 पे होती है देन वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 ऑन वन लॉट। अगर एक्सपायरी 14,800 पे होती है देन वी गेट 9,500 ऑन वन लॉट। अगर 15,000 पे होती है एक्सपायरी देन वी लूज 5,438 on one lot. So this is on the expiry day after 3:30, 3:30 पे क्लोजिंग पे। बट इन द मिडिल में ये इतना बड़ा प्रॉफिट या इतना बड़ा लॉस नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट, बट दिस पे ऑफ इज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। नाउ अगेन वी कीप ऑन शेयरिंग कि ये कॉस्ट में हमारी बनी है, दिस इज करंट M2M। Then again, this is again a screenshot of Bank Nifty data कि 10 बजे के बाद how data is moving. So we will understand this in the PPT. अभी मैं screenshot पे explanation कर रहा हूँ how the data is moving. ये निफ्टी का screenshot है कि निफ्टी का डेटा किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। So these are the basic screenshot that we are sharing. ये this is a very important screenshot. ये जो निफ्टी का डेटा है उसी का ग्राफ है कि निफ्टी के जो डेटा फॉर्मेशन हो रहे हैं उसके ग्राफिकल, ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज अ ग्राफ ऑफ द डेटा दैट वी हैव सीन। लाइक बैंक निफ्टी का ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज अ डेटा, लाइक ऑप्शन डेटा इज अ ग्रीन, यहाँ पे दिस इज अ ऑप्शन डेटा, दिस इज अ ग्रीन। फ्यूचर डेटा, ये फ्यूचर का रेड लाइन है, और जीरो लाइन इज अब ब्लू, यानी जीरो लाइन का मतलब हो गया कि जो जीरो वैल्यू है उससे नीचे ट्रेड हो रही है। ये बैंक निफ्टी का हो गया, निफ्टी का डेटा हो गया। तो इस तरीके से वी कीप ऑन शेयरिंग द स्क्रीनशॉट। और लाइक व्हाट इज दिस इज अ निफ्टी करंट पोजीशन, निफ्टी की ये कॉल पुट का प्राइस है। एंड ये डेटा आपका फर्दर जो मार्केट में सेलिंग आई उसमें डेटा का क्या मूवमेंट रहा, ये डेटा के ग्राफ है। लाइक से मार्केट, ये डेटा वी शेयर्ड एट 2:05 पे, और 2:05 पे ये डेटा में इस तरीके से देयर वाज अ फॉल इन द डेटा, लाइक से डेटा वाज टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड दीज लेवल्स एंड द मार्केट सडनली फॉल एंड द डेटा हैज आल्सो फॉलन।
सो दीज आर द स्क्रीनशॉट. नाउ निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड, यहाँ पे कॉल की पोजीशंस कितनी है, पुट की पोजीशन कितनी है, यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी टोटल पोजीशंस बन रही है ओपन इंटरेस्ट में वो कॉल में कितनी है. कॉल में 57% है, पुट में 42% है. सो द सिग्नल इज नॉट क्लियर. वेयर एज बैंक निफ्टी में द कॉल का पोजीशन इज 67%, पुट की पोजीशन इज 32%. सो देयर इज मोर पोजीशन इन द कॉल साइड. अगर कॉल में ज्यादा पोजीशन है दैट मीन्स द सिग्नल इज सेल, नेगेटिव सिग्नल. सो इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट है जिससे हम इंट्राडे ट्रेंड और ये डेटा देखते हैं. देन सो दीज आर द मेजर स्क्रीनशॉट जो टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द कॉन्सेप्ट. अब हम कॉन्सेप्ट्स में आते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे यूज करेंगे. नाउ ये ऑप्शन चेन है, ये मैंने किसी एक जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ कल के एग्जांपल्स लिए हैं फ्राइडे की, और कुछ मैंने पुराने एग्जांपल्स लिए हैं सो दैट आप आराम से उसको समझ सको. लाइक ये ऑप्शन चेन है, ये डेटा है अराउंड 11:30 का डेटा है, 11:30 का. और इसमें हमें फोकस ये करना है, दिस इज अ कॉल साइड, दिस इज अ निफ्टी ऑप्शन कॉल साइड एंड दिस डेटा इज निफ्टी ऑप्शन पुट साइड. दिस इज अ स्ट्राइक, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, open interest, total open interest and change of open interest. This is the most relevant column for intraday trading. And one is Odeon percentage. What is Odeon percentage? ये मैं आगे आपको explain करता हूँ कि Odeon percentage क्या है. Now change of open interest, this is the most relevant and important. Change of open interest हमें normally 10:30 के बाद अगर आप ट्रेड करो तो आपको डेटा ज्यादा एक्यूरेट मिलता है क्योंकि उस समय तक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाते हैं. लाइक ये जो डेटा है ये 11:30 का डेटा है. 11:30 पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इन द कॉल साइड इज 49 लाख. यानी जो रिटेल पब्लिक है उनका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो कॉल साइड में 49 लाख का है. पुट साइड में उनका जो बाइंग इंटरेस्ट है वो 54 लाख का है. अब ये डेटा देख के सेंटिमेंट हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो रिटेल पब्लिक है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स. दे हैव बॉट 54 लाख पुट ऑप्शंस एंड दे हैव बॉट 49 लाख कॉल ऑप्शंस. सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स. अब रिटेल पब्लिक इज मोर इंटरेस्टेड इन पुट एट 11:30. सो व्हाट विल बी द आवर स्ट्रेटजी? इफ द रिटेल इज बाइंग पुट ऑप्शन then we will buy call option, we will not buy put options because retail public are more interested in put option. So when we back tested this model, हमने ये find किया कि out of 10 times 7 बार हमें इसमें profit मिल जाता है. Now it is very important where you enter. अब ऐसा नहीं है कि 11:30 आपने ये डेटा देख लिया कि public is more interested in put and you buy put option at that time. So maybe आपका उस समय stop loss hit हो सकता है या फिर price can come down also. So what is the most suitable entry level? So that is again a very important, we will discuss in the presentation. So सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हुआ कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. तो करंट डेटा के हिसाब से हमें ये इस दिन में ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी. हमारा जो टारगेट होना चाहिए दैट इज अ कॉल साइड में हमारा टारगेट है, पुट साइड हमारा टारगेट नहीं है. एज अ बायर इफ आई एम अ सेलर इन दैट केस आई कैन टारगेट सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन ऑन दिस डे व्हेन पब्लिक इज मोर इंटरेस्टेड इन पुट ऑप्शंस. अब ये जो डिफरेंस है ये सेम डिफरेंस जो अभी हम लोगों ने 11:30 का देखा उसका डिफरेंस 10 o'clock से आप देखिए 10 बजे ये डिफरेंस पब्लिक का कॉल में कितना था 29 लाख, पुट में 30 लाख है. यानी द डिफरेंस इज ओनली 70,000. सो दिस इज नॉट द राइट कॉन्फिडेंस लेवल क्योंकि डिफरेंस इज वेरी लो. अगर डिफरेंस काफी कम है तो हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि डिफरेंस इतने कम पे ट्रेंड क्या होगा. सो वी जस्ट वेट. 10:15 पे द डिफरेंस हैज इंक्रीज्ड यानी कॉल साइड में पोजीशन 31 लाख हो गई एंड पुट साइड में 35 हो गई. यानी पुट में पब्लिक इज गेटिंग इनटू पुट्स. दे हैव बॉट 5 लाख ऑफ पुट्स वेयर एज दे बॉट ओनली 1 लाख ऑफ कॉल्स. यानी जो ये डिफरेंस हैज इंक्रीज टू 3 लाख. नाउ अगर आप ये 10:30 पे ऑब्जर्व करो, नाउ दिस इज अ चेंज. 31 लाख से 37 लाख हो गया कॉल का एंड वेयर एज पुट्स में 48 लाख हो गया. यानी पुट में देर इज अ चेंज ऑफ 13 लाख, कॉल में देर इज अ चेंज ऑफ 6-7 लाख. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे पब्लिक ने ज्यादा कॉल पुट
यानी पुट में एंट्री किया। अब आप इस समय की जो क्लोजिंग प्राइस है या जो भी लेवल्स हैं वो आप नोट कर सकते हो। ये एक टर्निंग पॉइंट है आज के लिए कि इस लेवल्स के आसपास कॉल्स एंड पुट्स में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन डेटा, देयर इज अ चेंज ऑफ 10 लाख क्वांटिटी इन द डेटा। सो देयर कैन बी वन एंट्री लेवल, आप इस तरीके से यहाँ पे एक एंट्री लेवल कर सकते हो अगर प्राइस इज नियर टू वीवैप लेवल, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यस, दिस इज अ एंट्री लेवल जहां पे आप इंटर कर सकते हो। नाउ अगेन द डेटा इज कांस्टेंट, नाउ इट इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे डेटा, सपोज यू इंटर्ड हेयर एंड डेटा स्टार्टेड रिड्यूसिंग, तो उसमें प्राइस भी नीचे आएगा बट डेटा इज रिड्यूसिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एग्जिट कर जाना है, हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड लेना है और वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस किस तरीके से फॉलो करना है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट ये अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो इस लेवल पे, तो इन दैट केस यू हैव टू फॉलो द स्टॉप लॉस। अगर इफ डेटा इज रिड्यूसिंग, उस केस में आपको एग्जिट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब सेम इसी डेटा को हम आगे समझते हैं कि ये डेटा आगे अराउंड 1 o'clock डेटा में क्या सिचुएशन थी। जैसे कि आप ये देखिए 45 lakhs के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, देन देयर इज अ 68 lakh, यानी पब्लिक इज गेटिंग इनटू पुट्स। पुट्स में ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। और तो सपोज यहाँ पे हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम कॉल खरीदते हैं एंड वी बाय एनी ऑफ द कॉल ऑप्शन, लाइक 12,300 का कॉल ऑप्शन आप खरीदते हैं, तो 88 रुपीज का प्राइस है। देन वी सी व्हाट हैपेंस एट द क्लोजिंग। इस तरीके से देन अगेन मूव टू द डेटा। अगर आप ये डेटा देखते हो जो अभी हम लोगों ने ये डेटा देखा, ये 1 o'clock का डेटा है, इसमें हाउ द टेंस इज मूविंग। सपोज यू इंटर्ड हेयर, यहाँ पे आपने एंट्री ली, डेटा में देयर वाज अ फॉल इन द डेटा एंड अगेन इट इज बाउंसिंग। सो ये जो ट्रेंड है डेटा का, हाउ द ट्रेंड ऑफ द डेटा इज मूविंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम अभी ग्राफ से समझेंगे कि डेटा के ट्रेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये इस डेटा का ट्रेंड, यानी कि मैं ये आप समझने की कोशिश करें। सपोज ये सेम डे का डेटा है, मार्केट खुला, ये दिस डेटा वाज मूविंग इन दिस वे, this is a graph of data, not graph of price. Now the data is trading above zero. The most important ये पॉइंट यहाँ पे क्या है कि डेटा जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर जीरो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना है। नाउ एंट्री लेवल कब होनी चाहिए मेरी? डेटा इज मूविंग अप, अगेन कमिंग डाउन। तो ये जो अराउंड 11 o'clock तक, 11 बजे तक डेटा फॉर्म होता है। तो अगर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए 9:15 to 11 o'clock कि मार्केट का डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है। दिस इज ऑब्जर्वेशन पीरियड। 11 बजे के बाद आप डेटा में ये देखो कि ट्रेंड आ रहा है कि नहीं। सपोज ये डाउन ट्रेंड, इट इज ट्रेंडिंग डाउन। इफ दिस इज ट्रेंडिंग डाउन और इफ दिस डेटा गोज बिलो दिस, अगर ये डेटा जीरो के नीचे चला जाता है, सो दैट मीन्स डेटा इज ट्रेंडिंग डाउन, मार्केट कैन फॉल। बट अदरवाइज सपोज यहां से इट resumes the uptrend, आप देखो डेटा हैज resumed the uptrend and this is the uptrending data. तो in this case आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि डेटा का जो ट्रेंड है दैट इज अ अपट्रेंड, प्राइस का ट्रेंड नहीं। आप प्राइस के चार्ट्स देख करके एंट्री लेवल डिसाइड कर सकते हो, बट डेटा का जो ट्रेंड है ये इंपॉर्टेंट है कि डेटा इज अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग। अगर आपने सपोज स्टॉप लॉस लेना है, आप सपोज यू इंटर हेयर, आप यहाँ पे इंटर कर जाते हो या यहाँ पे आप इंटर कर जाते हो, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेटा अगर नीचे चला जाता है तो योर स्टॉप लॉस और प्राइस स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से आप डेटा का ट्रेंड पे आपको यूज करना है। वो ग्राफ आपको स्क्रीनशॉट में आती है कि किस तरीके से ग्राफ डेटा का मूव कर रहा है। अदरवाइज जो ये डेटा है इसके ट्रेंड को आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेटा इज मूविंग। सिमिलर ये और एक एग्जांपल है किसी ट्रेडिंग डेज का, ये सेम ट्रेडिंग डेज का कि सेम लाइक डेटा इज, हाउ डेटा इज मूविंग, लाइक आप दिस इज मूविंग इन द अप ट्रेंड एंड मार्केट इज गेनिंग स्ट्रेंथ। दिस एन अदर एग्जांपल, किसी और दिन का एग्जांपल है। मार्केट का जो डेटा है, दिस डिफरेंस स्टार्टेड
दिस डिफरेंस स्टार्टेड विथ 33 लाख। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा कि सुबह ओपनिंग डिफरेंस इज 33-34 लाख, यानी कि कॉल में 60 लाख है एंड पुट्स में 93 लाख है। यानी जो पब्लिक है, रिटेल पब्लिक है, दे आर हेविली इनटू पुट्स, दे आर एग्रेसिव इनटू पुट्स, और दैट्स व्हाई द डिफरेंस इज वेरी हाई। जब कभी डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू अ ट्रेंडिंग डे। उस दिन मार्केट में बड़ा ट्रेंड आने वाला है, बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी हाई। अब डिफरेंस हाई के साथ साथ डिफरेंस में इंक्रीमेंटल हाई होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। यानी ओपनिंग डिफरेंस देखिए 33 था एंड बाय 11:45 द डिफरेंस इज 66 लाख, सो डिफरेंस हैज डबल्ड। यानी पुट्स में 1,73,00,000 शेयर्स का कोई चेंज है और कॉल्स में 1 करोड़ शेयर का है। तो दिस काइंड ऑफ डेज अगर कोई मिलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ 200 पॉइंट 300 पॉइंट मूव डे, ट्रेंडिंग डे उस दिन होगा। तो डेटा की वैल्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा की वैल्यू छोटी है तो उस दिन हमें स्प्रेड्स ट्रेड करना चाहिए, ना कि नेकेड ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि डेटा की वैल्यू अगर छोटी होगी तो मार्केट साइडवेज होगी और वो आपका स्टॉप लॉस ऊपर नीचे हिट करेगी नेकेड में। बट अगर डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस दिन आप नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। लाइक कई बार आप लोग को क्वेरीज होती है कि व्हाई नॉट वी आर ट्रेडिंग नेकेड, व्हाई वी ऑल आर ट्रेडिंग स्प्रेड्स एंड हेज। सो वो तो अभी हम लोग करंटली इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, विक्स इज ऑल्सो हाई। But when the data value is very strong, in that case we can trade naked options. But when the difference is slightly low, in that case we should trade spreads. Now ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने निफ्टी का लिया है फ्राइडे को मार्केट खुली दिस फ्राइडे 10 o'clock 10 बजे जब मार्केट खुली तो कॉल में 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट था और पुट में भी अप्रोक्सीमेटली 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट था। डिफरेंस वाज वेरी लेस, 20,000 डिफरेंस था। उसके बाद ओपनिंग में जैसे ही मार्केट खुली, मार्केट वेंट डाउन, देन मार्केट रिकवर्ड और ये 10:45 पे डिफरेंस वाज पॉजिटिव। ना हमें एंट्री हमेशा नॉर्मली हमें 10:30 11 o'clock एंट्री लेना चाहिए ताकि मार्केट सेटल हो जाती है। और कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, वो नॉर्मली आप देखोगे 9:15 से 11 बजे तक पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंट ब्रोकिंग हाउस का डेटा एनालाइज करोगे तो आरएमएस या उनके जो आरएम्स होते हैं या जो डीलर्स होते हैं, दे ट्राई टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट इन द फर्स्ट हाफ, और 9:15 से 10 बजे तक नॉर्मली दे आस्क देम टू बाय और सेल बेस्ड ऑन देयर ओन लॉजिक। तो नॉर्मली हमने ये फाइंड किया है कि जो मार्जिन्स हैं वो 70 to 80% ऑफ द रिटेल मार्जिन्स आर यूटिलाइज्ड बाय 11 o'clock। यानी जो बिगर हैंड्स हैं, दे डोंट ट्रेड बिफोर 11 o'clock, दे स्टार्ट ट्रेडिंग आफ्टर 11 o'clock। व्हाई दे कम आफ्टर 11 o'clock? बिकॉज वो 11 बजे तक ये देखते हैं कि इंडियंस जो रिटेल पब्लिक है उन्होंने क्या पोजीशंस क्रिएट कर ली है, एंड देन दे स्टार्ट ट्रेडिंग अगेंस्ट देयर पोजीशंस, बिकॉज ऑप्शंस इज अ जीरो सम गेम। यानी अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उनको लॉस होगा और उनको लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, बिकॉज दिस इज अ जीरो सम गेम। Exchange is only making the tax STT commissions. The government is making STT, and the participants are exchanging money. Like if we are losing money, they are making profits. They are losing money, we are making profits. So what I have seen in the data, जो bigger hands हैं, they normally come after 11:30, and the retail players they create positions before 11. So हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करना चाहिए as a smart player. और आप देखो 11 बजे के बाद देयर इज अ चेंज इन डेटा। ये यहां से एक्चुअल ट्रेंड मार्केट का चालू हुआ एंड द डेटा हैज टेकन अ डाउन ट्रेंड, और यहां से आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे आज के दिन में बेयर स्प्रेड ट्रेड करना है, या आज के दिन में मुझे कॉल अवॉइड करना है, या मुझे कॉल राइट करना है, या मुझे नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करनी है बेस्ड ऑन दिस डेटा। अब आप ये डेटा देखिए, धीरे धीरे डेटा इज नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ। कई बार मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं कि डेटा इज नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ, यानी कि आप ये देखो डेटा 11:45 डेटा टर्न पॉजिटिव, बट द डिफरेंस इज ओनली 1,54,000। 1,55,000 तो कोई इतने पब्लिक ट्रेड कर रही है, इतने एफआई ट्रेड कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। 1,15,000 का मतलब हो गया दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। व्हेन यू डिवाइड दिस बाय लॉट्स, 75 इज द लॉट साइज। अगर आप 1,54,000 55,000 को लॉट से डिवाइड करोगे तो लॉट्स आर वेरी लेस, so number of lots are very less.
सो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस इज 5600. 5600 इज द नंबर ऑफ शेयर्स. व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 75, so it's a very small lot. तो आप this value is not relevant. बट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मार्केट साइडवेज है या मार्केट फ्लैट है, बट डेटा इज नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ. इफ इट इज नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ देन मार्केट कैन कम डाउन. नाउ देयर आफ्टर देयर इज अ सडन चेंज, डेटा हैज टर्न नेगेटिव. तो आप यहाँ पे ये सोचोगे कि डेटा इज नॉट गेनिंग स्ट्रेंथ एंड डेटा इज लूजिंग स्ट्रेंथ. करेक्ट. सो इसको देख के अगेन इट हैज स्टार्टेड लूजिंग स्ट्रेंथ. सो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट. यानी 1:45 से 2 बजे के बीच में डेटा हैज लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ. यानी जैसे आपका ये 15 मिनट में अगर कुछ ऐसा हो जाए कि 5 लाख से सीधे 14 लाख हो गया डिफरेंस, सो दिस इज अ लेवल. वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, मार्केट इज गोइंग टू फॉल. अब आप ये देखो यहाँ पे अराउंड फ्रॉम 1:30 to 4 o'clock देयर वाज अ सडन फॉल. लास्ट ऑन फ्राइडे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि अगर निफ्टी 14,970 का लेवल ब्रेक करती है देन 14,900 विल बी अ क्वाइट फास्ट मूव. इस तरीके से एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था. और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 970 का लेवल ब्रेक करते ही निफ्टी केम डाउन टू 8,060, 8,070. अगर हम नेकेड ट्रेड कर रहे होते तो हमें प्रॉफिट मिलता, बट नेकेड ट्रेडिंग इज अगेन रिस्क टेकिंग, प्लस आप कितना रिस्क लेते हो, कितना रिवार्ड उसमें है. बट वी वर ट्रेडिंग हेज स्ट्रेटजी, उसमें हमें प्रॉफिट आया मार्क टू मार्केट, बट अगेन इट मूव्ड अप एंड वी क्लोज्ड नियरली फ्लैट. बट यस, फ्रॉम 1:30 to 2 o'clock निफ्टी वेंट डाउन बाय 125 पॉइंट्स. और यहाँ पे डेटा में हमें वो इंडिकेशंस मिल गए थे कि निफ्टी कैन गो डाउन. तो अगर आप कॉल ट्रेड कर रहे हो तो इससे आपको ये क्लू मिलता है कि मुझे कॉल ट्रेड नहीं करना है. सेकेंड क्लू ये मिलता है कि मुझे पुट ट्रेड करना है. थर्ड, आप उसमें कोई भी स्ट्रेटजी ले सकते हो, मार्केट का डायरेक्शन का आपको कुछ से मिल जाता है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ निफ्टी. अब इसके बेसिस पे ना अभी SGX इज ट्रेडिंग अप बाय 75 to 100 पॉइंट. नैस्डैक नीचे से रिकवर होके ऊपर क्लोज हुआ है. सबके मन में ये होगा कि मार्केट गैप अप होगी और वी विल लूज इन बुल स्प्रेड्स. नाउ लुकिंग एट डेटा ऑन फ्राइडे, अब हमारे मन में कई बार क्वेरी ये आती है कि हमें हमारी बियरिश पोजीशंस कैरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें बुलिश पोजीशंस कैरी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए. हाउ वी डिसाइड कि हमें कौन सी पोजीशंस कैरी करनी है, हमें तेजी की पोजीशन कैरी करनी है या हमें मंदी की पोजीशन कैरी करनी है. वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा बिटवीन 3 to 3:30. अब 3 बजे आप डेटा में देखिए मार्केट वेंट अप बाई, लास्ट में आपने देखा होगा मार्केट 70-80 पॉइंट का रिकवर हो गया, बट डेटा में देयर इज अ नो रिकवरी. डेटा 37 लाख का डिफरेंस है, 38 लाख का डिफरेंस है और क्लोजिंग डिफरेंस इज 38 लाख. सो इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, not exactly on the basis of price action, so what should I decide on the basis of this data? लास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि the bigger hands they don't want us to carry the bear position. रिटेल को वो bear position नहीं कैरी करना चाह रहा है, that's why they recovered the price but they carried their bearish position. So this data says कि जो positions हैं वो closing में carry हो रही है, so I should also carry the bear position. अगर मुझे ये डेटा में रिकवरी दिखती लास्ट के आधे घंटे में कि ये 37 लाख से ये सपोज 30 लाख हो गया, फिर क्लोजिंग में ये 25 लाख हो गया, तो मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता था कि नहीं, देयर इज अ रिकवरी इन डेटा, देयर इज अ रिकवरी इन द प्राइस. सो इफ बोथ आर कोरिलेटेड, इन दैट केस आई शुड exit from my bear spread. So let's see what happens on the Monday. But this is the logic how we carry our bear spreads or bull spreads. Agar data is not improving, price action is improving, so that is not relevant. That can be a misguiding information because data is a fact. Data जब आपका बन रहा है तो open interest create करने में margins are involved. When you create a open interest, the money is involved. But when the price is moving, that is a price action. But when the positions are created, that is a margins and money are involved and carried forward. So now I think this must be clear how we carry the positions, why we carried the position.
Now the next example, this is a example of Bank Nifty data of this Friday. आप लोगों ने इस डेटा का स्क्रीनशॉट सुबह से आप देख रहे होंगे. Mr. Matthew, he keep on publishing this data every 15 to 30 minutes. Normally, we are liable to publish this data every 30 minutes as per the commitment. So we are trying to publish it every 30 minutes. Now, Bank Nifty का आप डेटा देखो, Nifty में weakness was led by Bank Nifty on Friday. So this is clearly indicated in the data. आपको कैसे देखना है? आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा पे फोकस करना है. सपोज बैंक निफ्टी का डेटा इज नेगेटिव, निफ्टी का डेटा इज पॉजिटिव, तो इन दैट केस आपको दोनों को कंबाइन करना है. यानी कि सपोज इसको कैसे देखना है, सपोज निफ्टी का आप यहां पे देखो 10 बजे निफ्टी का नेट डेटा इज -2 लाख, सॉरी -20,000. बैंक निफ्टी का कितना है, -9 लाख. तो 9 लाख माइनस और -20,000. So it is 9,20,000 नेगेटिव, बिकॉज जो बैंक निफ्टी है उसकी वेटेज निफ्टी में इज 33 to 40%. यानी अगर बैंक निफ्टी गिरेगी तो निफ्टी कैनॉट मूव, और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी विल पुल द निफ्टी. अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सपोज मैं आता हूं 10:11 पे, 10:15 पे यहाँ पे पॉजिटिव फिगर है 5 लाख. अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निफ्टी में फिगर पॉजिटिव है 5 लाख की और आप डेटा नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, क्योंकि निफ्टी की तो फिगर पॉजिटिव है, सो आई शुड बाय कॉल ऑप्शन. बट आपने बैंक निफ्टी को नहीं देखा. बैंक निफ्टी का डेटा अगर आप देखोगे तो 7 लाख वहां पे नेगेटिव है. तो 7 लाख नेगेटिव प्लस 5 लाख पॉजिटिव, इट इज 2 लाख नेट नेगेटिव. सो what I want to say and what I mean to say is, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा इन कॉम्बिनेशन पे देखना है. एंड स्टिल बैंक निफ्टी हैज मोर रिलेवेंट कंपेयर टू निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी का डेटा नेगेटिव है तो दैट मीन्स निफ्टी विल ट्राई टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ बैंक निफ्टी डेटा. सेम ऑन दिस फ्राइडे, बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस देयर वाज अ सेलिंग डेटा, और बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर आप इस डेटा पे ट्रेड कर रहे होते तो कॉल्स में आपको लॉस नहीं होता. अगर आप पुट्स में ट्रेड कर रहे होते तो आपको प्रॉफिट बनता. अब इट डिपेंड्स कि हम प्रॉफिट किस लेवल पे बुक करें, प्रॉफिट हम बुक करें नहीं करें. बट यस, मार्केट वेंट डाउन बाय 300 to 400 पॉइंट आफ्टर एंट्री लेवल. अगर हम बियर स्प्रेड्स कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. बट यस, दिस इज गिविंग अ डायरेक्शन एंड वी आर गेटिंग 300-400 पॉइंट favorable direction in intraday based on this data, and we have been practicing this data for last, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इसको 6-7 महीने से. I have been practicing this data for last 3 years. तो ये तो फ्राइडे का अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा हो गया. इसको कैसे यूज करना है उसके ऊपर है. अब आप ये सपोज ये आप डेटा एक एग्जांपल में लेता हूं कि 330 पे आप इसको जस्ट कंसीडर करो कि हमें बुलिश कैरी करना चाहिए या हमें कॉल या पुट कैरी करना चाहिए था. 330 पे द डिफरेंस इज 38 लाख इन निफ्टी, एंड इन बैंक निफ्टी द डिफरेंस इज 20 लाख. बैंक निफ्टी के लिए 20 लाख का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज बैंक निफ्टी में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 25 इज अ बिग लॉट. सो 20 लाख प्लस 38 lakh, so it is a 58 lakh shares which has been carried forward. So on this basis मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निफ्टी अगर ऊपर खुलती है बेस्ड ऑन SGX निफ्टी एंड इट विल सस्टेन. अगर ऊपर खुल भी जाती है देन अगेन इट विल कम डाउन. नाउ आप इस डेटा को कैसे यूज कर सकते हो. सपोज आप प्रीवियस डेटा को ध्यान रखो और नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग होती है उस हिसाब से, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो. अगर डेटा नेगेटिव, सपोज पॉजिटिव डेटा गया आज के दिन में और मार्केट नीचे खुलती है तो दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रीवियस डे का डेटा पॉजिटिव है और मार्केट किसी रीजन से नीचे खुलती है. इन दैट केस यू कैन बाय, क्योंकि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट विल ट्राई टू बाउंस बिकॉज द प्रीवियस डे डेटा इज क्लोजिंग डेटा इज पॉजिटिव. सिमिलर अगर मार्केट डेटा नेगेटिव है आज प्रीवियस डे का क्लोजिंग का एंड देयर इज अ नो चेंज इन द डेटा इन द लास्ट हाफ एन आवर, तो अगले दिन अगर ऊपर खुलती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ऊपर खुलने के बाद इट विल नॉट गो अप, इट विल ट्राई टू पुल डाउन.
नाउ ये ग्राफ है उसी सेम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम अगेन, मूविंग। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक आपका कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हमें इस डेटा को यूज करना है, किस तरीके से पोजीशन में कैरी करते हैं। बट ये ग्राफ है सेम डेटा का। ग्राफ में आप देखिए देयर इज अ स्टिफ फॉल एंड दिस 0 इज द रेसिस्टेंस लेवल फॉर दिस ग्राफ। दिस डेटा ग्राफ, ये ग्रीन लाइन इज द डेटा ग्राफ। ये ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, इट इज नॉट एबल टू गो अप। तो आप इसको जब देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा ऊपर जा नहीं पा रहा है, डेटा इज ट्राइंग टू पुल डाउन, और अचानक से इट इज ब्रेकिंग डाउन। सो यहाँ पे फटाक से आप ट्रेड कर सकते हो। सो बैंक निफ्टी इज कंटिन्यूअस, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग and Nifty is not gaining strength, so that is a day where we can see selling during the day. So इस तरीके से when you practice this you will get more and more accuracy, क्योंकि क्या है किसी भी ट्रेडिंग मॉडल का 1 day 2 day 3 day में देख के आप उसको you cannot make money, but yes when you practice the graphs and data slowly you will you will reduce your losses। एक तो losses आपके कम हो जाएंगे, then you will start कैचिंग द गुड ट्रेड्स। ये और किसी एक डे का एग्जांपल है, इसके थ्रू हम ऑप्शन राइटिंग में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑप्शन राइटिंग हम कैसे करेंगे। लाइक ऑप्शन राइटिंग इन इंट्राडे, ये एक टॉपिक मैंने लिया था कि ऑप्शन राइटिंग हम कैसे करेंगे। तो ये डेटा का जीरो लाइन है, जीरो लाइन आ गया। और ऑप्शन राइटिंग हमेशा हमें 12 o'clock के बाद करना चाहिए। लाइक ऑप्शन बाइंग वी शुड डू आफ्टर 11, ऑप्शन बाइंग हमें 11 बजे के बाद करना चाहिए, एंड ऑप्शन राइटिंग हमें 12 बजे के बाद करना चाहिए अगर हम इंट्राडे में ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं। अब इंट्राडे में ऑप्शन राइटिंग हमें कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि डेटा ये दिस इज अ जीरो वैल्यू एंड डेटा इज ट्रेडिंग बिलो जीरो। अगर डेटा की वैल्यू जीरो से नीचे ट्रेड कर रही है तो हमें एट द मनी से 100 पॉइंट दूर की कॉल राइट करनी है। अगर डेटा लाइक से दिस डेटा नेगेटिव स्लोपिंग है तो एट द मनी से 15,000 इज एट द मनी, यानी निफ्टी जो लेवल है निफ्टी का हमें इसमें कंसीडर क्या करना है, फ्यूचर लेवल। स्पॉट लेवल कंसीडर नहीं करेंगे, हमें ऑप्शन राइटिंग में फ्यूचर लेवल कंसीडर करना है, क्योंकि हमें प्रीमियम्स होते हैं उसमें ऑलवेज, बिकॉज नॉर्मली निफ्टी ट्रेड एट अ प्रीमियम। अगर निफ्टी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है देन वी विल टेक स्पॉट लेवल, बट इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम इन दैट केस वी टेक अ फ्यूचर लेवल। अब फ्यूचर लेवल से 100 पॉइंट ऊपर की हम कॉल राइट करेंगे इफ यू आर अ कॉल राइटिंग, अगर हम कॉल राइट कर रहे हैं तो। और अगर हम पुट राइट कर रहे हैं तो स्पॉट लेवल से 100 पॉइंट नीचे हम राइट करेंगे। फ्यूचर लेवल से 100 पॉइंट नीचे हम पुट राइट नहीं करेंगे। इफ यू आर राइटिंग अ पुट देन स्पॉट लेवल से 100 पॉइंट नीचे पुट राइट करेंगे। इफ यू आर राइटिंग अ कॉल देन फ्यूचर लेवल से 100 पॉइंट ऊपर हम कॉल राइट करेंगे, राइट। और उसमें इंट्राडे में जो भी डेटा के हिसाब से हम विल क्लोज द पोजीशन बाय 3:15 और 12 बजे से 3-3:15 तक आप इस ट्रेड को कैरी कर सकते हो। आप इसको यू कैन डू अ डेमो ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। बट इसमें वीवैप इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम एंट्री करते हैं। बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम इंट्राडे का डेटा, इंट्राडे का डायरेक्शन हम इससे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक मैंने बहुत पुराना एक एग्जांपल निकाल रखा है। दिस इज अ वेरी गुड एंट्री लेवल्स जहां पे मुझे कई बार मिले थे ट्रेड। अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है इसलिए मार्केट इज मूविंग बिलो वीवैप, एवर वीवैप, बिलो वीवैप, एवर वीवैप, क्योंकि द विक्स इज मोर देन 25। व्हेन द विक्स गोज एवर 25 उस समय वीवैप की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज मार्केट बिकम्स मोर वायलेंट एंड वॉलेटाइल। बट व्हेन द विक्स इज below 25 then this model works best, but when the VIX is ever 25 उस केस में आपको थोड़ी बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। बट यस VWAP also works. Now what is VWAP? VWAP is a volume weighted average price. अब इसका आप टाइम फ्रेम नहीं लगा सकते कि मुझे 1 मिनट का VWAP चाहिए या मुझे 5 मिनट का VWAP प्राइस चाहिए। VWAP इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो भी मार्केट में वॉल्यूम हो रहा है, सपोज आपने 1 लॉट ट्रेड किया, मैंने 2 लॉट ट्रेड किया, किसी ने 10 लॉट ट्रेड किया, तो वो जो भी ट्रेडिंग मार्केट में हो रही है, जो भी वॉल्यूम्स हो रही है, उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट होके आता है। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी अगर
एफआईज ने 1 लाख क्वांटिटी निफ्टी बाई किया तो उसकी एवरेज प्राइस, रिटेलर ने 2 लाख निफ्टी शॉर्ट किया तो उसकी एवरेज प्राइस, सबका कंबाइंड इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि जो मार्केट में पूरे दिन की जो प्राइस जो ट्रेड हो रही है उसका एक एवरेज प्राइस मिलता है। और दिस इज अ मोस्ट रिलेवेंट बिकॉज बिगर हैंड्स आल्सो सीज दिस कि एवरेज प्राइस कहां पे है और मार्केट की ट्रेडिंग किस लेवल पे हो रखी है। उनकी बाइंग एवरेज भी आसपास इंट्राडे में इसी के आसपास होती है। ना हाउ वी ट्रेड, अब हमने डेटा से ये डिसाइड किया कि आज का डेटा पॉजिटिव है, हमें ये मिल गया 11 o'clock तक कि डेटा हमारा पॉजिटिव है। हम इंटर कब करेंगे? अब ये देखिए ये एक तो इसमें हमें ये टाइमिंग इज अप्रोक्सीमेटली 10, हमें 10:30 10 के बाद एंट्री करनी है। ये जो डेटा है ये आप मान के चलिए कि सुबह 9:15 से 10 बजे तक का डेटा है। अब हमें ये देखना है डेटा पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। व्हेनेवर मार्केट कम्स नियर टू वीवैप, अब ये वीवैप के नीचे आ गया, यहां पे हम एंट्री नहीं करेंगे। वीवैप के नीचे आ गया, पता नहीं, इट कैन गो डाउन ऑल्सो। वीवैप से नीचे आने के बाद व्हेन अगेन इट मूव्स अबव द वीवैप लेवल, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। द डेटा इज पॉजिटिव। हमने ऑप्शन टेबल में ये देख लिया कि आज रिटेल पब्लिक पुट खरीद रही है, कॉल कम खरीद रही है, हमें ये आइडिया मिल गया कि डेटा इज पॉजिटिव, परफेक्ट। नाउ हमें कॉल खरीदना है। नाउ प्राइस पे हम फोकस करते हैं कि प्राइस कहां पे है और प्राइस इस लेवल पे है, प्राइस इस लेवल पे है, इट केम टू वीवैप लेवल। यहाँ पे वीवैप पे आगे हम जंप करके नहीं खरीदेंगे बिकॉज इट कैन इवन गो डाउन ऑल्सो। और व्हाट यू कैन डू इज, आप एक लॉट यहाँ पे खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, यू कैन बाय 1 लॉट एंड वापस जब ये इसके ऊपर जब क्रॉस करे तो यू कैन ऐड 1 लॉट, यहाँ पे यू कैन ऐड 1 लॉट। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड वीवैप लेवल से 30 40 50 पॉइंट्स निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यानी कि अगर सपोज निफ्टी इज ट्रेडिंग एट, ये पुराना एग्जांपल है, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 11,190 माइनस 50 पॉइंट निफ्टी का, नॉट ऑप्शंस का, माइनस 50 पॉइंट यानी 25 पॉइंट ऑप्शंस का हो गया। और ऑलवेज ट्राई टू बाय एट द मनी, एट द मनी ऑप्शंस आपको हमेशा लेना चाहिए, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस नहीं लेना चाहिए। एट द मनी यानी जो भी स्पॉट लेवल या फ्यूचर लेवल चल रहा है उन दोनों में से कोई भी आप ट्रेड कर सकते हो। यानी अगर स्पॉट लेवल 15,000 है और फ्यूचर लेवल 15,150 है तो आप स्पॉट या फ्यूचर दोनों में से कोई भी स्ट्राइक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री आपकी यहां होनी चाहिए एंड स्टॉप लॉस वहां से 50 पॉइंट माइनस होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया, इंट्राडे स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, यहां से ये ऊपर मूव किया, अगर वीवैप से दूर हो गया यू कैन बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि जो नेचर है प्राइस का, इट ट्राई टू कम नियर टू द वीवैप लेवल। सपोज आपने यहाँ पे बुक कर लिया और आपने बुक नहीं भी किया तो यू कैन होल्ड योर पोजीशंस विथ योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट केम डाउन बिलो वीवैप एंड अगेन इट इज मूविंग अबव वीवैप लेवल। आप इसमें कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, आपने एक वीवैप पे एक लॉट लिया, यहाँ पे ऊपर गया, एक लॉट और ले लिया, अब आपने एक लॉट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, कहीं पे भी 10-15 रुपए आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर ये वापस वीवैप के नीचे आया, आपको नहीं लेना है, जैसे ये वीवैप के ऊपर जाए अगेन यू ऐड 1 लॉट, फिर ये ऊपर जा रहा है, आप कहीं पे भी एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड क्लोजिंग में जैसे ही मार्केट क्लोज हुई यू कैन क्लोज योर फाइनल लॉट। जो आपने यहाँ पे एक लॉट लिया था वो एक लॉट यहाँ पे आपने लिया, सेकेंड लॉट आपने यहाँ पे खरीदा, आइदर यू बुक दिस प्रॉफिट, सेकेंड लॉट आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मार्केट मूव्ड अप, नहीं तो आप होल्ड भी कर सकते हो। और अगर आपने बुक कर लिया अगेन यू ऐड सेकेंड लॉट, फिर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेकेंड लॉट का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, फिर फाइनल जो आपका फर्स्ट लॉट था यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वीवैप मॉडल का यूज आपको एंट्री के लिए करना है। इसमें मिस्टेक हमसे क्या होती है कि सपोज हमारी यहाँ पे एंट्री छूट गई, हम जंप करके यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, सपोज वी एंटर हियर, इस लेवल पे हमने एंट्री कर लिया एंड इन दैट केस आपका ये जैसे ही ये वीवैप के आसपास आएगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 50 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गई। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यही बनेगा, ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज द स्टॉप लॉस विल बी टू डीप। सो कई बार ऐसा होता है कि इंट्राडे में हमें एंट्री नहीं मिल पाती है और इन दैट केस हमें मजबूरी में इंटर करने की मूव टू स्प्रेड्स। और नेकेड अगर ट्रेड करना है तो नेकेड के लिए बेस्ट एंट्री आपकी हमेशा वीवैप पे ही होगी।
और अगर आप इस मॉडल के साथ VWAP पे एंट्री करोगे तो आपको 10 में से 6 से 7 बार प्रॉफिट मिलेगा। नाउ लास्ट टेलीग्राम चैनल प्रीमियम चलने के बाद मैं नेकेड ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत सारी हो रही है, प्लस वोलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में। बट यस, अगर हम इस मॉडल पे काम करें और आप इस पे काम करो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा और 10 में से 6 से 7 बार आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे, क्योंकि आपकी एंट्री सही होगी, डेटा के अकॉर्डिंग एंट्री होगी, तो यू विल डेफिनेटली मेक मनी आउट ऑफ 6 to 7 times आउट ऑफ 10 times। ना ये पे ऑफ हमने समझ लिया है कि पे ऑफ किस तरीके से है। कुछ गोल्डन रूल्स जो मुझे लगे फॉलो करना चाहिए हमें डे टू डे ट्रेडिंग में। उसमें एक तो अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 10:30 के बाद ट्रेड करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है, नॉर्मली द मिस्टेक दैट वी डू इज कि हम 9:15 पे सिंगापुर निफ्टी को देख के इंटर कर जाते हैं। उसमें कभी आपको पैसे मिलेंगे, कभी आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज अ लक बेस्ड ट्रेडिंग, दैट इज नॉट अ लॉजिकल ट्रेडिंग और दैट इज नॉट अ डेटा बेस्ड ट्रेडिंग। सो व्हाट आई प्रपोज और व्हाट आई सजेस्ट इज ऑलवेज ट्रेड आफ्टर 10:30। 11 बजे के बाद बिगर हैंड्स आते हैं और 11 बजे तक सारी ब्रोकिंग हाउस की पोजीशंस फुल हो जाती है रिटेलर्स की, बिकॉज उसके बाद उनके पास मार्जिन नहीं होता। 11 बजे के पहले दे क्रिएट अ पोजीशन एंड दे ओनली प्रे कि हमें प्रॉफिट आ जाए। एंड अगेन इट इज अ लक, बिकॉज ऑप्शंस में आप देखोगे कि व्हाट आई हैव एनालाइज्ड कि जो सपोज मेरी ब्रोकिंग हाउस में एसएमसी में 1000 न्यू कस्टमर्स एक महीने में अकाउंट खोले, उसमें से व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज 70% ऑफ द क्लाइंट्स दे लूज मनी। और अगर आप पैन इंडिया एनएससी का डेटा देखेंगे तो जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स क्लाइंट हैं 80% ऑफ द क्लाइंट्स आर लूजर इन ऑप्शंस एंड ओनली 10 to 15% ऑफ द क्लाइंट्स आर प्रॉफिटेबल, नॉट इवन 10%। अगर मैं अपनी ब्रोकिंग हाउस का ही डेटा को एनालाइज करूं लास्ट 1 साल का या 2 साल का, व्हाट आई हैव फाउंड इज रिटेल प्लेयर्स दे नॉर्मली लूज मनी इन ऑप्शंस। सो अगर हम इस डेटा को फॉलो करें तो वी कैन इंप्रूव एंड वी कैन मेक मनी ऑल्सो। सो वी शुड ट्रेड आफ्टर 10:30, 11 इफ वी आर अ बायर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस हमेशा वी शुड हैव अ प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। कभी भी ऑप्शंस में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 100 रुपए में खरीदते हैं एंड वी कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 30 रुपीज 40 रुपीज, वो दैट विल वाइप आउट योर 70% ऑफ द कैपिटल। एंट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज के पास एंट्री कर रहे हो, आप डेटा के हिसाब से एंट्री कर रहे हो, तो आपका कभी भी स्टॉप लॉस 20-30 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना एंट्री डेल्टा, जिसके डेल्टा 0.5 to 0.7 है उसमें एंट्री करनी चाहिए। सिंपल आप ये समझ के चलो कि जो स्पॉट लेवल है मार्केट का या जो फ्यूचर लेवल है वो स्ट्राइक बेस्ट होती है एंट्री करने के लिए, रादर कि आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स में हम जाते हैं। लेवल जो भी चल रहा है वो स्टॉप लॉस के साथ साथ हमें ट्रिगर लेवल यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 20, 25, 30, 35, 40 पॉइंट हमें अगर इंट्राडे में मिलता है एक लॉट में। अगर हम 4 लॉट ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक लॉट पे 20 पॉइंट, दूसरे लॉट पे 25 पॉइंट, तीसरे लॉट पे 35 पॉइंट, इस तरीके से हम इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओवर लिवरेजिंग ये हमें नहीं करना चाहिए, यानी अगर हमारे पास कैपिटल, व्हाट आई सजेस्ट इज अगर हमारे पास कैपिटल से 50,000 का है तो हमें मैक्सिमम एक लॉट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि अगर हमारे पास 25 लाख का भी कैपिटल होता है तो वी बाय 2-3 लॉट्स। अगर आप 25,000 के कैपिटल पे 2 से 3 लॉट ऑप्शंस खरीदेंगे और आपका एक भी स्टॉप लॉस हो गया तो योर कैपिटल इज डाउन बाय 50%। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस गेम इज सस्टेनेबिलिटी। अगर हम इस गेम में हैं देन वी कैन मेक मनी। इफ यू आर आउट ऑफ दिस गेम देयर इज नो वे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सस्टेन इन द गेम। अगर हम इस गेम में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे तो वी विल लर्न ऑल्सो, वी विल अर्न ऑल्सो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें, हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएं, बट वी हैव टू सस्टेन द गेम टू लर्न द गेम। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम, हमें इसको समझना है और इसमें सस्टेन करना है। ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, वो 1 साल में दे आर आउट ऑफ देयर कैपिटल एंड दे लीव द मार्केट एंड देयर आफ्टर दे हैव नो लर्निंग। सो हमें 50,000 के कैपिटल पे एक लॉट से ज्यादा नेकेड ऑप्शंस नहीं ट्रेड करनी चाहिए। स्प्रेड्स आप कर रहे हो तो 25,000 में बड़े आराम से आपकी ऑप्शन स्प्रेड्स क्रिएट हो जाती है, वो आप कर सकते हो। इक्वल लॉट्स 1 महीने के लिए करें। अगर इक्वल लॉट्स में आप कर रहे हो
एक महीने में प्रॉफिट आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आज मैं 2 लॉट कर लिया, कल आज का प्रॉफिट है तो कल मैंने उसको 5 लॉट कर लिया और हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड में हमें लॉस लग जाए। सो एटलीस्ट 1 वीक यू शुड ट्रेड विथ इक्वल लॉट्स। 1 week is profitable, then next week you can increase slightly, then second week is profitable, then third week में आप थोड़ा और increase कर सकते हो। एक ये मैंने एक्सपीरियंस से फाइंड किया कि अगर हम नेकेड ऑप्शंस खरीद रहे हैं और अगर वो 2 दिन मेरा प्रॉफिटेबल नहीं है तो मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 दिन लॉस में चली गई दैट मीन्स आई एम इनटू रॉन्ग ट्रेड एंड दैट विल गेट जीरो। सो इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क और मिटिगेट लॉस, अगर मेरा 2 दिन से ज्यादा किसी भी नेकेड ऑप्शंस में, आइदर इट इज दिस इज अ स्टॉक ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्पेशली एनी नेकेड ऑप्शंस, इन दैट केस आई शुड एग्जिट दैट ट्रेड। कैरी फॉरवर्ड हमेशा हमें हेज करना चाहिए। लाइक नेकेड ऑप्शंस, आप एग्जांपल लो, कल 300 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल गई, अगर आपके पास नेकेड ऑप्शंस है, लाइक ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, आप देखो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ऑन वेडनेसडे निफ्टी क्लोज्ड एट 15,300 and on the day of expiry it opened at 15,000। तो 15,000 की कॉल ऑप्शन जो 300 रुपए की थी वो 60 रुपए की हो गई। सो यू विल लूज एंटायर कैपिटल। मे बी आपको प्रॉफिट कभी कभी आएगा, बट ओवरनाइट सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई सजेस्ट इज आप इंट्राडे ट्रेड नेकेड करो, बट अगर आप कैरी कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज कैरी ए हेज पोजीशन, और उसके बाद उसी हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। Because what I feel is sustainability into the game is most important to earn and to learn. Thank you. Now we will move to the question answer session. And before moving to the question answer session, I will I missed 2 points. One is Odeon percentage and one is expiry day trading technique that I will also explain in next 10 minutes. And then we will move to the question answer session. So I'm trying to explain what is Odeon percentage now. Odeon percentage is it's a very simple, and ये स्टॉक्स में बहुत अच्छे से यूज होती है। इसमें खासियत क्या है कि विदिन 30 seconds यू कैन डिसाइड कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है या पुट ऑप्शन लेना है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। why we are calling it Odeon percentage? Because SMC में we use Odeon, but this is actually a change of open interest percentage. This is not a Odeon percent, this is a change of open interest percent. इसमें टेक्निक क्या यूज करना है आपको कि सपोज जो भी फ्यूचर लेवल मार्केट का चल रहा है, जो भी फ्यूचर लेवल मार्केट में है, सपोज मार्केट में 15,200 है या 12,200 चल रहा है, तो फ्यूचर का कॉल और जो भी फ्यूचर लेवल है उसकी कॉल और पुट दोनों आपको एक साथ लगानी है अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। आइदर दिस इज ओडियन और एनी ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ICICI डायरेक्ट, कोई भी है, वहां पे आप दोनों स्क्रीन पे लगा लें। नॉर्मली ओडियन में व्हेन यू डू F5, जब हम F5 करते हैं या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब आप देखोगे तो उसमें चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट आता है हर स्ट्राइक्स का। हमें यह फाइंड करना है कि जो एट द मनी स्ट्राइक्स है उसका चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट किधर ज्यादा है। लाइक से हमने 12,200 की कॉल लगाई, 12,200 की कॉल में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इज 120% और चेंज ऑफ पुट्स में ओपन इंटरेस्ट इज 655%। ये पुट्स का चेंज है और ये कॉल्स का चेंज है। पुट्स में ज्यादा है 655% है और कॉल्स में 120% है। सो माय टारगेट इज कॉल, क्योंकि जिसमें ज्यादा है उसके अगेंस्ट काम करना है। अगर पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज है तो मेरा टारगेट स्ट्राइक क्या होना चाहिए? कॉल्स होना चाहिए। यानी मैं 12,200 की कॉल पे आज ट्रेड करूंगा, क्योंकि पुट में चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी पब्लिक पुट की तरफ ज्यादा है। अब यहाँ पे एक और चीज हमें फोकस करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है और नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे भी 10 लाख है, दोनों बराबर है। बट चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इसका 655% क्यों है और इसका 120% क्यों है? बिकॉज द ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल, बट व्हाई द परसेंटेज इज हाई इन पुट्स एंड व्हाई द परसेंटेज इज लो इन कॉल्स? पुट्स में इसलिए हाई है क्योंकि पुट्स का टोटल ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है? 11 लाख का है टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, 11 लाख।
11 लाख में से 10 लाख आप घटा दीजिए तो कल के दिन कितना था? ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट वाज ओनली 1 लाख। तो 1 लाख ओपनिंग ओपन इंटरेस्ट था और पूरा का पूरा 10 लाख आज ऐड हुआ है, इसलिए यहाँ पे 655% है। वेयर एज कॉल्स में क्या है, 19 लाख था टोटल और 10 लाख आज ऐड हुआ है, इसलिए यहाँ पे 120% है, क्योंकि कल का जो बेस था दैट वाज 10 लाख। यानी कि न्यू आज जो भी पुट्स में ओपन इंटरेस्ट है दैट हैज बीन एडेड टुडे, दैट इज अ न्यू ओपन इंटरेस्ट। न्यू ओपन इंटरेस्ट इज more relevant and reliable compared to old open interest. New open interest is more reliable, more accurate. यानी आज के दिन में नए प्लेयर एंट्री कर रहे हैं पुट्स में, यानी रिटेल पब्लिक have bought more put options today. So इस दिन if they are more interested in puts, so I will buy call options, right? So इससे हमें ये समझ में आया कि आज के दिन में क्या हो रहा है और आज के दिन में पब्लिक कहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। इफ पब्लिक इज मोर इंटरेस्टेड इन पुट्स, आज के दिन में आई विल फोकस ऑन कॉल ऑप्शंस। और इसको आप इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। अब ये जो डेटा है, ये डेटा आपका स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है। सपोज आपको रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2100 की कॉल ऑप्शन आप लेना चाह रहे हो, तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले रिलायंस का स्पॉट लेवल आप देखो कि रिलायंस किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर रिलायंस से 2100 पे ट्रेड कर रहा है तो रिलायंस का 2100 का कॉल और 2100 का पुट दोनों आप सेम स्क्रीन पे आप लगा लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि आज का जो ताजा ओपन इंटरेस्ट ऐड है वो किस साइड ज्यादा है, वो कॉल में ज्यादा है या पुट में ज्यादा है। एक होता है प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट और एक होता है आज का ताजा ओपन इंटरेस्ट। ताजा ओपन इंटरेस्ट अगर आज का पुट में ज्यादा है तो आपको कॉल पे फोकस करना है, और आज का ताजा ओपन इंटरेस्ट ज्यादा पुट कॉल में है तो आपको पुट पे फोकस करना है। बड़ी सिंपल टेक्निक है। इसके बेसिस पे आप कम से कम राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन डिसाइड कर सकते हो वेरी क्विकली। तुरंत आप स्क्रीन पे लगा के देख सकते हो कि मैं राइट ट्रेड में ले रहा हूं या रॉन्ग ट्रेड में ले रहा हूं। स्टिल आपको कॉल ही लेना है तो आप 2 रुपए नीचे भी लगा के ले सकते हो। तो ये जो ओडियन परसेंटेज है, इसको दिस इज बेसिकली ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ये एसएमसी में हम इसको ओडियन परसेंटेज बोलते हैं, बिकॉज हम ओडियंस हमारी ब्रांचेस यूज करती है एंड दे आर यूजिंग दिस टेक्निक। और ये टेक्निक हमारे डीलर्स बड़े सिंपल तरीके से यूज करते हैं अपने डीलिंग डेस्क पे, कि जैसे ही कोई क्लाइंट उनसे पूछता है तो वो क्या करते हैं, सीधे F5 करके उसका चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं और उसके बेसिस पे उनको वो गाइड कर देते हैं कि ये कॉल लेना सही है या पुट लेना सही है। इससे डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट ओडियन परसेंटेज के बेसिस पे। नाउ एक और टॉपिक था कि एक्सपायरी डे में हमें किस तरीके से ये डेटा को देखना है। तो एक्सपायरी डे में हमें फोकस करना है ओनली ऑन एट द मनी स्ट्राइक्स, यानी कि सपोज ये जो डेटा है एक्सपायरी डे का होता तो हम क्या करते, मार्केट का स्पॉट लेवल 12200 पे है तो हम केवल फोकस करते ये 3 स्ट्राइक्स पे। 3 स्ट्राइक्स मतलब 12150, 12200 एंड 12250। इस 3 स्ट्राइक्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज पे हमें फोकस करना है, बिकॉज जो बाहर की स्ट्राइक्स है उस पे प्रीमियम्स नहीं होते, दैट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज ऑप्शंस प्रीमियम्स आर नॉट देयर। अब ये तीनों का कंबाइंड हमें देखना है कि तीनों के कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट चेंज किस तरीके से हो रहे हैं। ये 3 स्ट्राइक्स है ना, ये केवल 3 स्ट्राइक्स पे हमें फोकस करना है कि 3 स्ट्राइक्स का सम का क्या इंडिकेशंस है। अगर तीनों स्ट्राइक्स का सम में कॉल्स ज्यादा हो रही है या पुट्स ज्यादा हो रही हैं। अगर तीनों स्ट्राइक्स के सम में कॉल्स ज्यादा है, पुट्स कम है तो मार्केट गिरेगी, और पुट्स ज्यादा है, कॉल्स कम है तो मार्केट बढ़ेगी। जस्ट लाइक अ तराजू, आप तराजू को देख सकते हो कि पलड़ा किधर भारी है। अगर पुट्स की तरफ पलड़ा भारी है तो मार्केट ऊपर जाएगी, और कॉल्स की तरफ पलड़ा भारी है तो मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो ये केवल 3 स्ट्राइक्स पे हमें फोकस करना है, और इस तरीके से आप एक्सपायरी डे को जज कर सकते हो। और डिफरेंस कितना ज्यादा है, अगर डिफरेंस थोड़ा है तो मार्केट थोड़ी मूवमेंट होगी, डिफरेंस अगर ज्यादा है तो मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आएगी। अगर डिफरेंस थोड़ा है तो आप 1:2 बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, या बुल कॉल रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं, या आप बटरफ्लाइज बुलिश बटरफ्लाइज कर सकते हैं। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप नेकेड ऑप्शंस कॉल्स कर सकते हैं, या नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी डे को एनालाइज कर सकते हो। यस, नाउ मैं फाइनली
एक बार हम रिवाइज कर लें, देन वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। जो हमने डिस्कस किया अभी, ये टॉपिक सारे डिस्कस किए हैं। एक तो जो मेजर क्वेरीज थी कि जो हमें टेलीग्राम्स में स्क्रीनशॉट्स आते हैं उसको किस तरीके से देखना है, क्या प्रिंट स्क्रीन को कैसे समझना है। अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको कवर कर लेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि जो डेरिवेटिव्स के डेटा हैं उसको कैसे रीड करना है, एग्जाम्पल्स और उसका हिट रेशियो क्या होता है। डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेटा की वैल्यू कितनी है। डेटा की वैल्यू अगर छोटी है तो उसकी रेलेवेंट कम है, डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रेलेवेंट ज्यादा है। डेटा का स्लोप क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लोप डाउन ट्रेंडिंग है और डेटा पॉजिटिव है तो आपको कॉल नहीं लेना है। डेटा इज पॉजिटिव बट स्लोप इज डाउन ट्रेंडिंग, उस समय दैट इज नॉट अ राइट एंट्री लेवल। बट डेटा इज अप ट्रेंडिंग and you buy near VWAP, that is a right entry level. Limitation of this model, ये this is a most important point, क्योंकि कोई भी मॉडल स्टॉक मार्केट में हमेशा नहीं काम कर सकता। अगर हमेशा कोई मॉडल काम करे तो we all of us will become मल्टी मिलियनियर वेरी सून। बट यह हर मॉडल की एक लिमिटेशंस है, उस मॉडल को हमें समझना है। अब मर्सिडीज की भी एक लिमिटेशंस है कि वो हर तरीके के रोड पे नहीं चल सकती। उसी तरीके से इस मॉडल का भी एक लिमिटेशंस है कि गैप अप, गैप डाउन, बम्पी मोमेंट, ठीक है। कभी मार्केट में आंधी आ रही है तो उस आंधी में ये मॉडल्स की एक्यूरेसी कम हो सकती है। एक्सपायरी डे में हमें क्या डेटा देखना है ये हमने समझा कि जो एट द मनी है प्लस ऊपर नीचे केवल एक स्ट्राइक्स पे ही फोकस करना है। देन ऑप्शन राइटिंग हमने समझने की कोशिश करी कि 0 से नीचे वैल्यू है तो 12 बजे के बाद ट्रेड लेना है, ऑप्शन राइटिंग हम कर सकते हैं। और जो भी स्पॉट लेवल है और जो फ्यूचर लेवल है, फ्यूचर लेवल से ऊपर की कॉल बेचनी है 100 पॉइंट दूर की, और अगर हम पुट बेच रहे हैं तो स्पॉट लेवल से 100 पॉइंट दूर की पुट बेचनी है। VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसके आसपास एंट्री लें तो हमारी सेफ्टी होगी, और इस लेवल से 50 पॉइंट मिनिमम फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस रखना है। व्हेन विक्स इज लेस देन 25, अगर विक्स 30 से ऊपर आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ऑलवेज यू कैनॉट कीप अ फिक्स स्टॉप लॉस। विक्स ज्यादा है तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, विक्स कम है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। स्ट्रेटेजी पे ऑफ, हर लेवल वाइज जो पे ऑफ है वो एक्सपायरी डे का है, सेम डे का नहीं है, और ये एक्सपायरी में क्लोजिंग का पे ऑफ है। देन क्वेश्चन आंसर, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। यू कैन